Hello, good afternoon, FABCom students. Today I am going to start the new topic, Global Positioning System, that is called GPS. Using GPS technology to collect the field data is becoming almost standard practice nowadays. Using GPS laser offset for mapping is typically only when the need to collect data is hard to reach or inaccessible areas. So GPS का और why we use GPS, the GPS technology to use to collect the field data, that is called standard practice nowadays. Now we can collect the data whenever we need with the help of GPS. Imagine how much easier all your field work could be if you did not have to occupy any location you needn't you needed to map GPS data. You can measure the slope distance in simulation and azimuth to anything and position any remote feature with just one shot. So with the help of GPS we can collect the data, means we can collect the field data, means that is called slope distance, that installation and azimuth, so which we can how we are using that remote, that we can you can easily add the height and elevation data as an attribute and start collecting field data in the lot of less time. That is this is why it is said the map more move less. सो यहाँ पे आपको क्या बताया गया है कि उसमें आप इजीली ऐड कर सकते हैं हाइट और एलिवेशन डाटा आप ऐड कर सकते हैं जैसे एट्रीब्यूट है, और फील्ड डाटा आपको जल्दी से जल्दी कम समय में मिल जाता है, तो उसको बोलते हैं मैप मोर मूव लेस, कि मैप से भी ज़्यादा आपको इंफॉर्मेशन ये जीपीएस थ्रू मिल जाती है. GPS is a set of satellites and control systems that allow the specifically designed jet GPS receivers to determine its location anywhere on the earth 24 hours a day. तो जीपीएस क्या है? जीपीएस एक सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है या कंट्रोल सिस्टम है कि जो हम बोलते हैं कि जिसके थ्रू आप लोकेशन अर्थ का कोई भी लोकेशन आप कवर कर सकते हैं और 24 आवर्स में आपको ये मिल जाता है. American system consists 24 satellites orbiting the Earth is in high altitude orbits. तो अमेरिकन सिस्टम 24 सैटेलाइट्स ऑर्बिटिंग क्या अमेरिकन सैटेलाइट्स क्या करती है, अमेरिकन सिस्टम क्या करती है, 24 सैटेलाइट्स अभी उसका वो इस्तेमाल कर रही है और उसके पास है, जिसको हम बोलते हैं कि एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड एटीट्यूड वो उस पर ऑर्बिट के थ्रू उस पर पता चलता है. दिस सैटेलाइट्स हैव 12 आवर्स ऑर्बिट टाइम एंड द pass over control station so that their orbits can be closely monitored and their position uh, pres- एंड दैट पोजीशन प्रिसाइजली आइडेंटिफाइड, कि अभी इस सैटेलाइट के पास 12 आवर्स का ऑर्बिट टाइम होता है, जो हम बोलते हैं कि कंट्रोल वो क्या करता है, पास ऑन करता है और उसका जो ऑर्बिट होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा उस स्टेशन के पास वो क्लोजली रिलेटेड होता है, जिसकी उस स्टेशन पे क्या हम बोलते हैं कि पोजीशन है, उस स्टेशन का क्या हम बोलते हैं कि उस स्टेशन के हम कितने करीब हैं या उसको किस तरह से उसको हम बोलते कि जैसे हम बोलते कि उसका पूरा का पूरा फील्ड डाटा हमको मिल जाता है. Then satellites and ground-based receivers transmit similarly coded radio signals so that the time delay between the transmission and the receipt of the signal gives the distance between the satellite and the receiver. तो सैटेलाइट क्या करता है, सैटेलाइट हम बोलते हैं कि सैटेलाइट जो हम बोलते हैं कि ग्राउंड बेस्ड रिसीवर्स होते हैं ट्रांसमिट करता है, कि जैसे कोडेड रेडियो थ्रू हमें वो सिग्नल्स मिलते हैं और जब वो ट्रांसमिट किया जाता है तो उसके बीच का जो टाइम होता है, जब सिग्नल्स आते हैं और सबने सिग्नल्स दिए जाते हैं उसका बीच का जो टाइम है वो सैटेलाइट दिखाता है, और सैटेलाइट और रिसीवर के बीच में कितना टाइम या क्या है वो सब कुछ वो दिखाता है. If the receiver can pick up the signals from 3 or 4 satellites, that trigonometry is used to calculate the location and height of the receiver.
कि जब रिसीवर सिग्नल्स पिकअप करता है 3 और 4 सैटेलाइट से, तो ट्रिगोनोमेट्री ये जो एक वेपन्स है जिसको हम बोलते हैं कि लोकेशंस कैलकुलेट करने के लिए, और उसका हाइट रिसीवर्स मीन्स उसका हाइट कितना है वो डाटा हमको ट्रिगोनोमेट्री से मिलता है. The GPS user will see the position fixed display on the receiver. The GPS is finding wide range of applications varying from the navigation, air, sea and land and to mapping and the surveying. तो GPS का हम बोलते हैं कि बहुत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है. जैसे हम बोलते कि यहाँ पे हमें अभी देखा टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑन एनीवेयर ऑन द अर्थ. तो इसी तरह से एयर, सी और वाटर या लैंड हो तो उसको सर्वे करने के लिए, उसका मैप निकालने के लिए जीपीएस का इस्तेमाल किया जाता है. द रिसेंट डेवलपमेंट्स इन द पोर्टेबल कंप्यूटिंग एंड मोबाइल कम्युनिकेशंस हैव ओपन द होल न्यू एरिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ आवर जीपीएस. तो अभी जब रिसेंट टाइम की हम बात करते हैं तो रिसेंट डेवलपमेंट में कि हर एक के मोबाइल में हमको जीपीएस दिखाई देता है, कि जीपीएस को हमें पूरा का पूरा लोकेशन दिखाई देता है. जैसे ओला है, ओला कैब है, वहाँ पे भी जीपीएस लगाया जाता है कि जिसको आपको किसी को बारी बारी रास्ता पूछने की ज़रूरत नहीं है. अभी हम आगे देखते हैं. द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस इज करंटली ओनली फुल्ली फंक्शनल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम. तो जीपीएस है उसको हम बोलते हैं कि फुल्ली फंक्शनल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के थ्रू उसको जाना जाता है. More than 2 dozen GPS satellites are in the medium Earth orbit and transmitting signals, allowing GPS receivers to determine the receiver's location, speed and direction. तो यहाँ पे आपको जैसे हम बोलते कि जीपीएस के हम बोलते कि 2000 सैटेलाइट्स अर्थ ऑर्बिट पे वहाँ पे आपको अवेलेबल हैं, जो हम बोलते हैं कि जीपीएस थ्रू जो सिग्नल्स भेजा जाता है या जो रिसीवर्स जो सिग्नल्स कलेक्ट करते हैं उसको रिसीवर्स का लोकेशन, स्पीड और डायरेक्शन कितना है वो जीपीएस थ्रू पता चलता है. देन सिंस द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट वाज लॉन्च इन 1978, GPS has become that indispensable aid to the navigation around the world and an important tool for map making and land surveying. तो सबसे पहला जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया वो 1978 में लॉन्च किया गया, और उसके बदल मीन्स जीपीएस उसके बाद जो जीपीएस है मीन्स हम बोलते कि नेविगेशन सिस्टम की तरह वर्ल्ड में वो काम करने लगा, कि मैपिंग में उसका इस्तेमाल होने लगा और लैंड सर्वे में भी उसका इस्तेमाल होने लगा. GPS also provides the precise time reference used in many applications, including scientific study of earthquakes and synchronization to the synchronization of telecommunications network. तो जीपीएस जिससे जीपीएस को एक इम्पोर्टेंट टूल की तरह मैप सर्विंग के लिए, लैंड सर्विंग के लिए काम में उसको लगाया गया, उसी तरह वो ज़्यादा से ज़्यादा उसका इस्तेमाल कि साइंटिफिक स्टडी जैसे साइंटिफिक स्टडी से अर्थक्वेक में उसका इस्तेमाल किसी तरह हो सकता है, या हम बोलते हैं कि टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क के लिए जीपीएस का इस्तेमाल बढ़ता गया. जैसे फॉर एग्जांपल जीपीएस थ्रू अभी कौन से एरिया में कितने कौन से लेवल पे अर्थक्वेक हुआ है, कितने पॉइंट पे हुआ है, ये सब कुछ हमें जीपीएस थ्रू पता चल जाता है. आगे हम देखते हैं that developed by the United States Department of Defense. It is officially named NOSTAR GPS, means Navigation Satellite Timing and Ranging Global Positioning System. The satellite uh, constellation is managed by the United States Air Force 50th Space Wing. The cost of maintaining system is approximately 750 million that US dollar per year and including the replacement of aging satellites and research development. तो यहाँ पे आपको क्या बताया गया कि यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने एक नया जीपीएस मीन्स नो स्टार जीपीएस मीन्स उसको बोलते हैं नेविगेशन सैटेलाइट टाइमिंग एंड रेंजिंग ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम. ये एक सैटेलाइट रेडी किया है, और दिस सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन इज मैनेज बाय यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स में उसका इस्तेमाल 50 स्पेस विंग तक उसको इस्तेमाल किया गया है. अभी उसका जब कॉस्ट हम बोलते हैं कि अगर उसका कॉस्ट ये बनाने के लिए उसका कॉस्ट देखा जाए तो 750 मिलियन पर ईयर उसका कॉस्ट आता है, और उसको
रिप्लेसमेंट करने के लिए एजिंग जो सैटेलाइट और रिसर्च डेवलपमेंट है वो उस पर अभी काम कर रहे हैं। डिस्पाइट दिस फैक्ट द जीपीएस इज फ्री फॉर सिविलियन यूज एज अ पब्लिक गुड। तो जीपीएस हम बोलते हैं कि सिविलियन की तौर पे पब्लिक को फ्री कॉस्ट में दिया जाता है, लेकिन जब हम उसको स्पेस में या हम बोलते कि एयरफोर्स में या हम बोलते कि पर्टिकुलर जगह पे टेली कम्युनिकेशन के लिए या सिंक्रोनाइजेशन के लिए जब उसका इस्तेमाल किया जाए तो उसका कॉस्ट बढ़ जाता है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज यूजेस ऑफ जीपीएस। यूजेस ऑफ जीपीएस तो सबसे पहले है फॉर एग्जांपल मिलिट्री। जीपीएस allows the accurate targeting of various military weapons including cruise missiles and precision guided munition to help to prevent GPS guidance from being used in the enemy or improvised weaponry. The US government controls the export of civilian receivers. तो मिलिट्री में जीपीएस का इस्तेमाल किस तरह से होता है, तो जिस तरह से फॉर एग्जांपल जीपीएस जो होता है तो उसकी जैसे हम बोलते हैं कि मिलिट्री में जैसे वेपन्स कहाँ पे रखे हैं या हम बोलते हैं कि मिसाइल्स किस तरह से मिसाइल्स किस तरह से गिरेंगे या क्या हो सकता है प्रिसाइज गाइडेंस म्यूनिशंस, उसके लिए जीपीएस का इस्तेमाल किया जाता है। और जीपीएस के गाइडेंस थ्रू कि जैसे फॉर एग्जांपल एनिमी कहाँ पे है या उनके वेपन्स कहाँ पे है ये ढूंढा जा सकता है। तो यूएस गवर्नमेंट उसको हम बोलते हैं कि यूएस गवर्नमेंट कंट्रोल्स द एक्सपोर्ट ऑफ सिविलियन रिसीवर्स, तो वो कंट्रोल कर रही है। आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट है ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल कैन बी एक्टिव विद द जीपीएस रिसीव एट द फैक्ट्री और आफ्टर मार्केट इक्विपमेंट। यूनिट्स ऑफन डिस्प्ले moving maps and information about the location, speed, direction and nearby the street and landmark। तो ऑटोमोबाइल्स में हम जब अपने मोबाइल की बात करते हैं उसमें जब जीपीएस ऑलरेडी जो होता है तो वो आपको क्या बताता है, तो उसका लोकेशन क्या है, उसका स्पीड कैसा है, डायरेक्शन कौन सा है, स्ट्रीट है या लैंडमार्क है, ये सब कुछ हमें जीपीएस थ्रू पता चल जाता है। सिर्फ हमें जब उसको उस बटन पे हम प्ले करते हैं या ओपन करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें वो रेंज दिखाई देती है, रास्ता दिखाई देता है या लेफ्ट हैंड साइड में टर्न करना या राइट हैंड साइड में टर्न करना, ये सब कुछ हमें ऑटोमोबाइल्स में जीपीएस थ्रू दिख जाता है। Then next point is aircraft. Aircraft navigation system usually display the moving map and are often connected to the autopilot for en route navigation. Flight computers installed in many gliders use also use GPS to compete with the wind speed aloft and the glide paths to the waypoints such as alternate airports or the mountain passes to aid in route decision making for क्रॉस कंट्री सोरिंग। तो एयरक्राफ्ट नेविगेशन में जब हम एयरफोर्स की बात करते हैं तो एयरक्राफ्ट नेविगेशन सिस्टम इसको आपको मूविंग मैप की तरह, जैसे हमारे फॉर एग्जांपल जब हम रोड पे गाड़ियाँ चलाते हैं वैसा मैपिंग होता है, वैसे हम बोलते हैं कि स्काई में भी उनका हम बोलते हैं कि मैपिंग होता है। जैसे हम बोलते हैं कि मूविंग मैपिंग आर ऑफन कनेक्टेड टू द ऑटो पायलट, ऑटो पायलट के साथ वो जुड़ा रहता है, उनको कौन सी रोड पे किस तरह से वो वहाँ पे कौन से रूट में जाना है तो वो उनको पता चल जाता है। दैट फ्लाइट कंप्यूटर इंस्टॉल इन मेनी ग्लाइडर्स ऑल्सो यूज जीपीएस टू compete with the wind speed अलॉट। तो जब भी हेलीकॉप्टर हो या हम बोलते कि प्लेन हो या ग्लाइडर्स हो तो उसमें जीपीएस लगाया जाता है कि जिसकी वजह से ऐसे ही कंप्यूटर लगाए जाते हैं कि जैसे विंड का स्पीड कितना है, विंड का स्पीड कितना है, फिर ग्लाइड पाथ टू वे पॉइंट्स मीन्स ग्लाइड पाथ वो वे पॉइंट्स दिखाते हैं मीन्स उसका पॉइंट डायरेक्शन दिखाते हैं और सच एज अल्टरनेट एयरपोर्ट्स एंड माउंटेन पासेस, जिसकी वजह से हमें मीन्स बल्कि एयरपोर्ट्स पे जहाँ पे लैंड करना है वो पता उनको चल जाता है, माउंटेन्स पासेस हो रहे वो उनको पता चल जाता है। सो इस तरह से ग्लाइडर्स में ऐसे कंप्यूटर्स लगाए जाते हैं, जीपीएस वाले कंप्यूटर्स लगाए जाते हैं जिसकी वजह से विंड का स्पीड वे पॉइंट्स और हम बोलते हैं कि एयरपोर्ट्स और माउंटेन ये सब कुछ वहाँ पे उनको पता चल जाता है। आगे हम देखते हैं boats and ships can use GPS to navigate all the world's lakes, seas and oceans. Maritime GPS units include the functions useful on the water such as man overboard function that
instantaneously allows marking the location where the person has fallen overboard, which simplifies rescue efforts. तो बोट और शिप में भी जीपीएस लगाया जाता है, जिसकी वजह से लेक्स हैं, सीज हैं, ओशंस हैं, या मरीन हम बोलते कि मरीन लाइन या कॉस्ट लाइन, उसमें जैसे किस तरह से काम करना है वो उनको पता चलता है। कि जैसे मेरी टाइम जीपीएस यूनिट इंक्लूड द फंक्शन यूजफुल ऑन द वाटर सच एज मैन ओवरबोर्ड functions that instantly allows marking the location where person has fallen overboard। तो जैसे हम बोलते हैं कि उसकी वजह से यहाँ पे जैसे मेरी टाइम जीपीएस यूनिट जब लगाया जाता है तो उसके फंक्शंस उसके फंक्शंस हम बोलते हैं कि मैन ओवरबोर्ड में किस तरह से काम करते हैं और कंटिन्यूसली उसको मार्किंग करते हैं, लोकेशन बताते हैं। कि जैसे फॉर एग्जांपल सिंप्लीफाई द रेस्क्यू एफर्ट्स, कि फॉर एग्जांपल कोई इंसान वहाँ पे गिर रहा है या क्या हो रहा है, तो उसको बचाने के लिए ये बोट्स और शिप में जीपीएस लगाया जाता है। आगे हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हेवी इक्विपमेंट कैन यूज जीपीएस इन द कंस्ट्रक्शंस, माइनिंग एंड द प्रिसीजन एग्रीकल्चर। तो जैसे बोलते हैं कि हेवी इक्विपमेंट में भी जीपीएस लगाए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन लाइन है, माइनिंग है, और एग्रीकल्चर सेक्टर में भी प्रिसीजन एग्रीकल्चर सेक्टर में भी वहाँ पे जीपीएस का इस्तेमाल बढ़ जाता है। The blades and buckets of the construction equipment are controlled automatically with the GPS बेस मशीन गाइडेंस सिस्टम। तो उसमें जब हम बोलते हैं कि कंस्ट्रक्शन साइट में जब ये जीपीएस लगाया जाता है तो जैसे बेस मशीन सिस्टम की तरह वो काम करता है, या फॉर एग्जांपल ऑटोमेटिकली जीपीएस उसमें काम करता है कि बकेट्स और कंस्ट्रक्शन ऑफ इक्विपमेंट, जैसे उसको एक जगह से दूसरी जगह उठाने के लिए या एक जगह से दूसरी जगह रखने के लिए या क्या है वो हमें पता चल जाता है। एग्रीकल्चर इक्विपमेंट में यूज द जीपीएस to steer automatically or visual aid display on the screen for the driver। तो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट जीपीएस का इस्तेमाल किससे कि जैसे फॉर एग्जांपल सॉरी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट में यूज द जीपीएस टू स्टीर ऑटोमेटिकली और द विजुअल एड डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन फॉर द ड्राइवर। कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जब ये जीपीएस का इस्तेमाल होता है तो उसकी स्क्रीन पे हम बोलते कि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हम बोलते कि हार्वेस्टिंग से लेके या सीड सोइंग से लेके जितना भी सब कुछ वर्किंग होता है, वर्क प्रोसेस होता है, वे जीपीएस थ्रू पता चलता है। दिस इज़ वेरी यूजफुल फॉर कंट्रोल ट्रैफिक एंड नाउ रो क्रॉप ऑपरेशन एंड ड्यूरिंग द स्प्रिंग। कि जब स्प्रे किया जाता है क्रॉप ऑपरेशन, मैंने अभी आपको बताया कि हार्वेस्टिंग से लेके या हम बोलते कि सीड ग्रोइंग तक उसका जितना भी प्रोसेस है, तो जीपीएस थ्रू वो पता चलता है कि वो इंसान वहाँ पे क्या कर रहा है। हार्वेस्टर्स विथ यील्ड मॉनिटर्स कैन ऑल्सो यूज जीपीएस टू क्रिएट द यील्ड मैप ऑफ पैडॉक बीइंग हार्वेस्टेड। तो हार्वेस्टर जो होता है, हम बोलते हैं कि जो हार्वेस्टर्स या मॉनिटर्स जो होता है उसका दे कैन ऑल्सो यूज द जीपीएस। देखिए फॉर एग्जांपल पैडॉक में हम बोलते हैं कि या हार्वेस्टिंग के लिए या पैडॉक के लिए कौन सा ज़मीन का इस्तेमाल करना चाहिए, तो वो वहाँ पे जीपीएस थ्रू पता चल जाता है। देन बाईसाइक्लिस्ट ऑफन यूज द जीपीएस इन द रेसिंग एंड द टूरिंग। कि जो साइक्लिस्ट होते हैं बाईसाइक्लिस्ट वो भी जीपीएस का इस्तेमाल रेसिंग और टूरिंग के लिए करते हैं। जीपीएस नेविगेशन अलाउज साइक्लिस्ट to plot their course in the advance and follow this course, which may be include wider, narrower street without having to stop frequently to refer the separate maps। तो बाईसाइक्लिस्ट किस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि जब जिसका जीपीएस का इस्तेमाल किया जाता है तो नैरो स्ट्रीट कितने हैं, या जैसे उनके लिए हम बोलते हैं कि जो स्पेस होना चाहिए, जो रास्ते होने चाहिए वो प्रेफरेबल है कि नहीं, वो सब कुछ जीपीएस से उनको पता चल जाता है। सो सम जीपीएस रिसीवर्स आर स्पेसिफिकली अडेप्टेड फॉर साइक्लिंग विद द स्पेशल माउंट्स एंड हाउसिंग। तो जो जीपीएस रिसीवर्स होते हैं तो
साइकिलिंग हम बोलते हैं कि स्पेसिफिकली एडाप्टेड फॉर द साइकिलिंग विद द स्पेशल मास। तो जब भी जीपीएस रिसर्च होते हैं तो साइकिलिस्ट के लिए या बाईसाइकिलिस्ट के लिए पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर माउंटेन एरिया या हाउसिंग एरिया वही सिलेक्ट किया जाता है कि जो उस बाईसाइकिलिस्ट के लिए अच्छा हो। देन नेक्स्ट पॉइंट इज हाइकर्स। हाइक हाइकर्स Hikers, climbers, and even ordinary pedestrians in the urban or rural environment can use GPS to determine their position and with or without reference to separate the maps. In isolated areas, ability of GPS to provide precise position can greatly enhance the chances of rescue when climbers or hikers are disabled or lost. कि क्लाइंबर्स हो या हाइकर्स हो या ऑर्डिनरी पेडेस्ट्रियंस हो, तो अर्बन और रूरल एरिया की बात करते हैं कि जहाँ पे हम बोलते हैं कि जहाँ पे हम बोलते हैं कि वो विथ मैप हो या वो विदाउट मैप हो, कि जहाँ पे वो आइसोलेटेड एरिया में हो, तो उनके लिए ढूंढने के लिए जीपीएस का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है कि उनको बचाने के लिए। कि फॉर एग्जांपल क्लाइंबर्स है या हाइकर्स है या डिजेबल है, कोई खो गया है, तो उनको पता करने के लिए जीपीएस का इस्तेमाल किया जाता है। अभी हम आगे देखते हैं सर्वेइंग। सर्वे ग्रेड जीपीएस रिसीवर्स कैन बी यूज टू पोजिशन द सर्वे मार्केट्स, बिल्डिंग एंड रोड कंस्ट्रक्शन। तो सर्वेइंग में भी जीपीएस का इस्तेमाल जीपीएस रिसीवर का जीपीएस का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से सर्वे मेकर्स हो या बिल्डिंग्स हो, रोड कंस्ट्रक्शन हो, या हम बोलते हैं कि बिल्डिंग के लिए बिजनेस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए जीपीएस का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज मैपिंग एंड जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जीआईएस। Most mapping grade GPS receivers use the carrier wave data from only the L1 frequency but have the practice crystal oscillator, which reduces the errors related to the receiver clock clock jitter. मीन्स यहाँ पे क्या बताया गया है, मैपिंग एंड जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जीआईएस का किस तरह से इस्तेमाल होता है। तो मोस्ट प्रोबेबली जीपीएस जो रिसीवर होते हैं वो डाटा कलेक्ट करते हैं L1 फ्रीक्वेंसी से, और उसका प्रैक्टिस हम बोलते हैं कि दे हैव द प्रैक्टिस क्रिस्टल ऑसिलेटर, कि उनके पास क्रिस्टल ऑसिलेटर का प्रैक्टिस होता है कि जिसकी वजह से जो क्लॉक जीटर वो इस्तेमाल करते हैं उससे कम से कम उसमें एरर आए। सो this allows processing the errors on the order of 1 meter or less in real time with the differential GPS signal received using the separate radio receivers। तो यहाँ पे आपको क्या बताया गया है कि this allows the processing errors on order of meter or less in the real time with the different GPS signals receiving using the separate radio receiver। इसमें GPS हम बोलते हैं कि सेपरेट रेडियो रिसीवर का इस्तेमाल करते हैं। बाय स्टोरिंग द करियर फेज मेजरमेंट एंड डिफरेंशिएटली पोस्ट प्रोसेसिंग डाटा, द पोजिशन एरर on the order of 10 centimeters are possible with these receivers। तो आपके क्या बताया गया है, by storing the carrier phase, a measurement differentiates processing data, positioning errors on the order of 10 centimeters are possible with these receivers। तो इसी तरह से उसका काम आता है। ओके, यहाँ पे क्या बताया गया, फिर से बात करते हैं कि by storing the carrier phase measurement and differentially post-processing data, the positioning errors on the orders of 10 centimeters are possible with this way। कि 10 सेंटीमीटर्स पे जितना भी एरर आता है वो उसको रिमूव करने का काम करता है। देन जियोफिजिक्स एंड जियोलॉजी। अभी जियोफिजिक्स और जियोलॉजी में उसका क्या काम होता है, तो high precision measurement of crustal strain can be made with a differential GPS by finding and relative displacement between GPS sensor, multiple stations situated around an actively
Deforming areas such as volcano or fault zone can be used to find the strength and ground movement. This measurement can then be used to interpret the cause of deformation such as dike or seal the beneath of surface on active volcano. कि जियो फिजिक्स और जियोलॉजी में हम बोलते हैं कि जीपीएस थ्रू या कौन से एरिया में वो नेचुरल कैलेमिटीज आने वाली है या नेचुरल कैलेमिटीज आने की संभावना है, वो हमें जीपीएस सेंसर थ्रू हमें पता चल जाता है कि फॉल्ट जोन कौन सा है, वॉल्केनो कहाँ पे हुआ है, या ग्राउंड मूवमेंट कैसी हो रही है, अर्थक्वेक आने वाला है। ये सभी की सभी इंफॉर्मेशन हमको वहाँ पे मिल जाती है। The next point is mobile satellite communication. Satellite communication system use the directional antenna usually pointed the satellite, the antenna on moving ship or train that for example must be pointed based on the current location. Modern antenna controllers usually incorporate GPS receiver to provide this information. तो मोबाइल सैटेलाइट कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं तो मोबाइल में ऑलरेडी जीपीएस होता है, जिसकी वजह से हम बोलते कि ये जो सैटेलाइट होता है उसमें डायरेक्टली एक एंटीना होता है। तो एंटीना जैसे 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 हम ट्रेन में हो या शिप में हो जैसे मूव करते हैं वैसे ही वो करंट लोकेशन बताता है। The modern antenna controls usually incorporate GPS receiver to provide, तो modern antenna controller most probably corporate system में लगाया जाता है। So we shall stop here. We shall continue in the next lecture.